Good evening, everyone. Thank you all for joining. Hope you had a wonderful day today. Markets in red. Market was in positive after a long fall. Markets have reacted positively. Dollar is hitting. Dollar has hit almost 91.74, which is the lowest lifetime low. Guys, good question. Which sectors will benefit? Which sectors will underperform? Economics part. It will come. Part of economics. Dollar decreased. The rupee depreciated. So which sectors will impact, which sectors will impact positively and which sectors will impact negatively? Yeah, IT sector, and which will react positively, which will react negatively to this. IT will be negative. Rupee depreciation. Correct. Udit, correct. Exports will be positive. Guys, others? Hey guys, you are all analysts. Think like an analyst. Don't just pass exams. Exam pass करके नौकरी नहीं मिलती. Think आज था ना market में. What happened? Dollar was at yesterday, rather, not this today. Yesterday it was like 91.74. Finance sector, metal. How will finance sector impact? Alright, guys, come on. No one? And let me tell you, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ होने वाला है नहीं. It never helped me. I have friend who are CA, CFA, IMB वाले हैं. I have a student who is from IIM Calcutta, still not able to get into core finance role because you don't speak up. When someone asks you, an experienced guy asks you क्या होने वाला है, at least I should know ना कि तुम right जा रहे हो wrong जा रहे हो. What do you think? ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो forget about तुम्हारा P, balance sheet, financial modeling. Live markets. I will pay you to give me some knowledge about the markets. I will not pay you 10 lakhs to make financial models. I will not pay you 10 lakhs to make equity research reports. I will give you 10 lakhs to do some research and help me grow. Companies that provide services outside India will increase. Okay, specifically. Can you mention those companies, Simanshu? Those sectors, not companies, but sectors. How will auto sector get impacted? It's positive or negative? I just want positive or negative. 1 second. Positive or negative? Akshit, defense has nothing to do with the dollar. Akshit, sir. Okay, IT export service will impact. Yeah, Himanshu is right. Export-oriented companies, pharmaceutical, probably your IT services, and that is positive. Okay, what about negative? Which will be negative? Pharma negative. Why pharma negative? Okay, if you don't know, let me tell you how. Himanshu is correct. Specifically, if you want to say that which will get impacted, तो basic है कि if your rupee is depreciated, तुम्हारी चीजें बाहर के country में सस्ती मिल रही है. Correct. So whatever you are exporting probably will get benefit, and whatever you are importing, import will get expensive. Now import में obviously India is not importing country. Sorry, India is a much importing country. India export ज्यादा कुछ करता नहीं है, majorly तो import करता है. अच्छा, तो import में क्या होता है? Import करके हम खरीदते नहीं है. Obviously if you are buying imported products, तो ठीक है, तो वो companies तो India में listed है नहीं. But the companies who are buying imported products for their production, तो जिन जिन के import companies है that raw material जो import कर रहे हैं, they will have a huge impact on their margins. So negative sectors में if I talk about, whichever company is importing raw materials in India will all have an issue. So ये तुमको देखना भी है कि specific sector I cannot mention. Autos भी करते हैं, then तुम्हारे farmers, sorry, FMCG companies में भी कोई चीज वहां से import होती है. Whichever things are importing to India, raw material cost जिसके भी बढ़ रहे, it will have an huge impact for the sector. Okay. हाँ, ऑयल जिसमें भी लगता है, क्रूड ऑयल जो भी सेक्टर में लगता है. सो इफ आई टेल यू
है ना। एफएमसीजी में भी तुमको पता है तुम्हारे सोप्स डिटर्जेंट्स किससे बनते हैं, यू नो? पाम ऑयल, यस। पाम ऑयल से नहीं, पाम ऑयल से हिमांशु वो तो वेफर्स और वो सब बनते हैं, वो तो खाने का ऑयल है। तुम्हारा एक्चुअली क्रूड के जो बाई प्रोडक्ट्स है ना, उससे सोप्स और डिटर्जेंट बनते हैं। कभी देखा होगा सोप को ऑयली होता है ना, राइट? हाँ तो वो तो जो भी इंपोर्ट करते हैं तो ऑयल ऑब्वियसली पाम ऑयल भी एक्सपोर्ट, इट विल बिकम एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे ये एफएमजीजी को भी इट इम्पैक्ट्स। हम बोलते हैं एफएमजीजी को इम्पैक्ट नहीं होता, बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। या लास्ट फिल्टर पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल, करेगा अमित, या सो हैव अ क्लोज लुक ऑन दो सेक्टर्स। अच्छा, लेट्स गो ऑन टू आवर टॉपिक्स वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। अच्छा कल ना आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग। ये टोटल इक्विटी में एक्चुअली स्किप आउट ऑफ माय माइंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, या फिर उसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोलते हैं। एनीवन वांट टू से व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्या होता है व्हेन इट इज डन? से मेंशन हो गया, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? शेयरहोल्डर्स होल्डिंग लेस देन 50%, retail investors, नहीं, not retail investors, Amit. Comes when an acquired a company, cannot when you acquire the company. I'll tell you, if I have less than 50% stake in another company at the time of merger and acquisition, at the time of mergers and acquisitions, merger में नहीं होता है विराज, acquisition में होता है। merger में तो दो नया कंपनी बन जाता है। Now I will give you a basic, ये काफी प्रॉब्लम है। हाउ विल यू टेल इन द इंटरव्यू कि क्या होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट विद एग्जांपल? अच्छा, the answer that you are giving less than 50% stake, that is not 100% right. Partially it's right. It is not 100% right. Now I'll give you a basic example. याद रखो, मैं यहाँ पे करके रखता हूँ। Forgot to write minority interest also over here. Minority interest, non-controlling interest भी बोलते हैं। Now what is it? Not having controlling stake. The percentage of stake that are other partners holders in the post. अच्छा, ये एमएनए तुम बोलते हो ना, मर्जर्स बहुत अलग है और एक्विजिशंस बहुत अलग है। मर्जर्स मत बोलना। मर्जर में देयर इज ऑलवेज अ न्यू एंटिटी दैट इज फॉर्म, और एक एंटिटी दूसरे में आ जाते। उसमें फिर नॉन कंट्रोलिंग कैसे होगा? दोनों ओनर हो गए ना कंपनी के। तो एक्विजिशन में हमेशा होते हैं। अच्छा ना टेल यू, अच्छा नाउ यू नो देयर आर टू स्टेटमेंट। एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होता है फॉर द कंपनी, स्टैंड अलोन, एंड देयर इज अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। ओके, अच्छा नाउ व्हेन वी आर डूइंग, अच्छा स्टैंड अलोन, if I talk about RK Advisory, and now my another company name is Mentor Next LLP. Okay, the Mentor Next LLP is specifically into training. Okay, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो कंपनी है Mentor Next, this is my company which is a listed one. So this is what it is into training. Okay, training and placements. Fine. Okay, now this is, तो जो भी ट्रेनिंग से तुम फीस देते हो, whatever fees I get, I will report it over in the Mentor Next. Okay, so that is my standalone revenue. अच्छा, बट आई हैव अ सब्सिडरी नेम आर के एडवाइजरी। चलो ये ना मेरे फ्रेंड की है, मेरी नहीं है, अज्यूमिंग मेरे फ्रेंड की है, एंड आई एम नॉट ओनिंग 100% स्टेक इन इट। सो देयर इज सब्सिडरी इज कॉल्ड होल्ली ओन सब्सिडरी, एंड देयर इज नॉर्मल सब्सिडरीज। ओके, अभी क्या होता है, आई एम नॉट होल्डिंग 100% स्टेक इन दिस। मेंटर नेक्स्ट एलएलपी ने इसको एक्वायर किया है, एंड इट इज ओनली होल्डिंग 80% स्टेक। ओके, now how it is a subsidy defined? See, there are two parts. One is subsidy that is defined, and one is investment that is defined. So दो अलग। See, Mentor Next ने इसमें इन्वेस्ट किया ना, 80% स्टेक करते मतलब क्या, they have invested. Now that investment are of two parts. एक इन्वेस्टिंग होता है, एक सब्सिडरी होता है। तो तुमको क्या लेना चाहिए?
whenever a person or a company has a controlling stake in it. अच्छा भाई, there is no specified data कि controlling stake क्या होता है. यूजुअली 20 30 के ऊपर बेसिकली ना, अगर सीएफए के बुक्स में देखते हैं तो 40, सॉरी नॉट 40% के ऊपर अगर है तो इट इज सेट टू बी योर कंट्रोलिंग स्टेक. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने कंपनी, लेट्स से अभी आरके एडवाइजरी के बोर्ड पे भी मैं ही हूँ, लेट्स से मैंने ना सिर्फ 10% स्टेक है मेरा, ठीक है, आरके एडवाइजरी में. मेंटर नेक्स्ट के आरके एडवाइजरी में सिर्फ 10% स्टेक है एंड आरके एडवाइजरी के बोर्ड पे मैं हूँ. सो आई हैव अ कंट्रोलिंग स्टेक, मतलब आई कैन कंट्रोल द आरके एडवाइजरी. तो वो 10% स्टेक को भी हम सब्सिडी कनेक्ट करेंगे, वी कैन कंसिडर सब्सिडी. But it is just that you should have a controlling stake, that you are able to influence the decision of that company. ऐसा भी लगता है ना कि इसमें कोई ओनर ही नहीं है, जैसे एमएनसीज है, इसमें कोई स्पेसिफिक ओनर है ही नहीं, सब है थोड़े थोड़े थोड़े, आई हैव द हाईएस्ट स्टेक इन दैट, ऐसा भी हो सकता है. तो आई एम अ कंट्रोलिंग स्टेक. बट यूजुअली इट इज अराउंड 40%. इफ अ कंपनी हैज 40% स्टेक, इट इज सेट टू बी अ कंट्रोलिंग स्टेक. सीएफए के अकाउंट स्टेक से कंट्रोल के अलावा भी कंट्रोल आ सकता है. हाँ करेक्ट, स्टेक वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उसके बोर्ड पे हूँ तो इट इज नॉट स्पेसिफिकली कि मैं इन्वेस्टमेंट किया, तो ऑब्वियसली इट शुड शो समवेयर इन द बैलेंस शीट. नहीं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो यू शुड टॉक एंटायरली दैट इट इज योर सब्सिडरी. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, लेट अस से आरके मेंटर नेक्स्ट इज डूइंग अ रेवेन्यू ऑफ 1,000 crores and RK Advisory is doing a revenue of 500 crores. Okay. So obviously the consolidated revenue will be around 1,500 crores. Okay. And उसमें से ना profits. Okay. Let us say Mentor Next is doing a profit of 100. RK Advisory is doing a profit of, let's say, 100, say 40. 50 करता हूँ. Okay. मैं इसको 80 pence लिख लेता. Okay. Now RK Advisory is doing a profit of 50. So obviously the consolidated profit, because यही मेरी कंपनी, obviously RK Advisory भी मेरी कंपनी है, because I am running it. I am having a controlling stake. So my total profits belongs to 1650. हाँ, 1 सेकेंड. तो कंसोलिडेट में नहीं, कंसोलिडेट में तो 160 दिखेगा. प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखता है ना कंपनी में, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो तुमको है ना, मैं तुमको दिखाता हूँ. 1 सेकेंड. आई जस्ट ओपन वन एक्चुअल नंबर्स एंड शो यू. टाटा मोटर्स का विल ओपन एन कंपनी बट सॉरी, टाटा मोटर्स स्प्लिट हो गया है. और इससे मारुति इज द स्टैंडर्ड नंबर कि मैं नीचे आता हूँ कंसोल पे. इज द कंसोलिडेटेड नंबर्स. ओके. तो ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये पूरा का पूरा इट इज okay. So 1650 is the profit. So this will report on your P&L statement. Okay. Now there are two parts in it. Profits available for equity holders. So when I say equity holders, means it is the common equity holders. Okay. And minority interest. ऐसा होता है minority interest. तो कैसा होगा पता है, अभी ऑब्वियसली ये 50 का, does everything belong to Mentor Next? Does everything belong? 50 रुपया प्रॉफिट तो किया है, इसमें 20% स्टेक अभी तक मेरे फ्रेंड का भी है. So can I say 50 का 20% will be 50 का 20% will be my friend's stake, मतलब 10 रुपया, 10 crores belongs to my friend. And बचे कितने अभी? 1650 minus 10. So this is how the profit is divided. This is how the minority stake is.
एनालिसिस करते वक्त हम कंसोलिडेट ही लेते हैं, वी डोंट टेक स्टैंड अलोन, बिकॉज ऑब्वियसली आरके एडवाइजरी इज ऑल्सो अ पार्ट, वहां से भी ग्रो हो रहा है. बट व्हेन इट टॉक्स अबाउट ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर या अर्निंग्स पर शेयर, व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस? अर्निंग्स पर शेयर इनको पता है? ईपीएस, व्हाट इज द फॉर्मूला? एनीवन? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? पैट बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड्स. वन ऑफ द रॉन्ग आंसर्स दैट यू गिव, सबने वही गलती की है. ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस आंसर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. अर्निंग्स पर शेयर इज यस प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तुम बराबर बोल रहे हो. बट अभी यहाँ पे तीन तीन प्रॉफिट्स है, तुमको कौन से प्रॉफिट लेने हैं? मुझे बता, तुमको कौन से प्रॉफिट लेने हैं? हाँ, विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये याद रखना, whenever you calculate EPS, it is profit available to equity PAT by और नंबर ऑफ शेयर्स में बनाता हूँ हमेशा. कैसे बोलता है? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. दिस इज हाउ यू स्पीक इन इंटरव्यूज. हाउ डू यू कंप्यूट EPS? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस, तुम भूल गए माइनस, किसी ने बोला डिविडेंड. प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू प्रॉफिट अवेलेबल, शॉर्ट फॉर्म लगेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ये कौन बोलेगा? एवरी फाइनेंस गाय मेक दिस मिस्टेक, क्योंकि वो तुम इतना आदत हो चुका है बात करने का. पैड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, पैड बाय नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय, फिर नंबर, अच्छा नंबर ऑफ, नॉट शेयर्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. Guys, if I was your interview and you have given me this kind of answer, probably I would have rejected at the start. तुमको पहले ही रिजेक्ट कर देता मैं. आई वुड हैव रिजेक्टेड यू एट द स्टार्ट कि इसको तो ईपीएस बोलना भी नहीं. 2 साल इसने एमबीए किया, सीएफए पढ़ रहा है, कोई आंसर आता नहीं है, बात करने नहीं आ रहा है. दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर इंटरव्यू स्किल्स. नहीं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी, डिविडेंड्स कैसे माइनस होगा? डिविडेंड्स पीएनएल में दिखता है अंकित? डू यू सी डिविडेंड्स इन द पीएनएल? इज इट एन एक्सपेंस? देन तुमको मुझे बताओ, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितने दिए है क्या इधर? यू गेट एनी आंसर ओवर हियर? डिविडेंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब दो, दोनों ओनर्स ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंसेस भी ओनर्स होते हैं कंपनी के. देन सो वो अज्यूम मत करो कि इसमें माइनस है प्रॉफिट. प्रॉफिट आफ्टर, हाँ भले इंडिया में नहीं होते प्रेफरेंसेस इशू, बट यूएस कंपनीज में होते हैं. और इंडिया में भी कोई कोई कंपनीज में प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हैं. तुमने अगर बैलेंस शीट जरा और डीप में जाके रिसर्च कर दे, तो कोई कोई कंपनीज में अभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं. या डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर पैट, बट वो यू डोंट सी ऑन द पीएनएल. इफ यू गेट दिस आंसर, डोंट अज्यूम कि इसमें से डिविडेंड पे किया होगा. ये तो पैट से ही आना आंसर. सीधे से आंसर है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, अच्छा भारत में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ओवर हियर, बट जहां पे भी होगा यू हैव टू माइनस इट. बट वेल गिविंग आंसर्स, ये क्या आंसर हो गया? वो है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आई हैव आस्क्ड यू हाउ डू यू फाइंड ईपीएस. पैट अवेलेबल टू, याद रखना, लिख के रखना, ये पैट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर चाहिए तो ओनर्स ऑफ द कंपनी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स. आई विल गिव यू, मैंने ना एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू नहीं, एक कॉलेज में गया था मैं इंटरव्यू लेने को. टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट खोला था और उसको बोला कि यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस ढूंढ के निकालो. आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट्स, एक ने भी राइट आंसर, नॉट इवन एनी वन वॉज क्लोज. वो ही तुम्हारी तरह प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही करते हैं. कौन सा प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, कहाँ लेना है,
नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होता है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होता है। टाटा मोटर्स ने वो साल शेयर्स इशू किए थे, वो कौन करेगा? आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दिस इज द लेवल ऑफ डिटेल दैट इज रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग एन एनालिसिस। आई एम नॉट श्योर तुम जो पढ़ाई करते हो वो कितना तुम याद रखते हो। बिकॉज इफ दिस, अभी क्या हो रहा है ना, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन आई एम टीचिंग रिसर्च ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। यू गेट द प्रॉब्लम, किसी ने भी राइट नहीं दिया। नो वन वाज इवन क्लोज ऑफ आंसरिंग। एक ने, किसी ने बोला, एक ने डिविडेंड बोला, डिविडेंड नहीं होते, प्रेफर्ड डिविडेंड्स होते हैं। इसी गाइस, तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम्स है। देन हाउ आर वी सपोज टू प्लेस यू? तो मेरे पास आते हो सर, नो सर प्लेस मी, हमको प्लेस करो, हमको सब आता है, हमको मॉडलिंग आता है, हमको रिसर्च आता है। भाई मॉडलिंग और इक्विटी रिपोर्ट राइटिंग तो सबको आ रहा है आजकल। सबको क्या है, एआई कर सकता है 10 सेकंड में। एआई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मॉडलिंग और रिसर्च के लिए, मॉडलिंग और रिपोर्ट राइटिंग के लिए। दैट इज व्हाट यू डू अपार्ट फ्रॉम मॉडलिंग इज इंपॉर्टेंट। ऑन डेली बेसिस तुम क्या कर रहे हो, दैट काउंट्स आउट। हाँ, इट विल रिफ्लेक्ट इन, करेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेक्ट हिमांशु। तो वो बोलना चाहिए ना तुमको। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ईपीएस, और क्यों नहीं आया तुमको? ओके, गॉट इट ना, डोंट फॉरगेट दिस। आज के बाद मेरे से अगर कभी फ्यूचर में बात हुई तुम्हारी, तो अगर मैं पूछा तो मुझे पता है तुम ग्रुप पे हो, तो असेंडिंग इफ यू आर इन द ग्रुप तुमको ऐसा आ रहा है। नॉट इन योर लाइफ टाइम यू शुड फॉरगेट दिस। किसी ने पूछा ईपीएस, ऑलवेज एलाबोरेट योर आंसर, नेवर गो क्विक ऑन इट। गॉट इट? व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? कैसे आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट? एंड ईपीएस विल बी ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ shares, number of outstanding shares. And how do you find outstanding shares? आई होप तुमको पता होगा, मैं फिर मैं बता देता हूँ क्विक में। 1 अप्रैल, लेट्स से मेरे ओपनिंग शेयर्स थे, हमारे कितने थे, हमने कल शेयर्स लिए थे ना, ओपनिंग शेयर्स, मच वाज इट, 2 लाख रुपए के शेयर। ओके, आई हैव minority interest and I will rename as at EPS. Assuming my opening shares were 2 lakh rupees, okay, sorry, 2 lakh number of shares, मैंने ना ऐड किए। ऐड मतलब क्या होगा गाइस? आईपीओ या एफपीओ? फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग? हाँ, लिस्टेड है तो एफपीओ, अनलिस्टेड है तो आईपीओ। तो तुमको पूछना है गाइस, व्हाट इज कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हाँ भाई, प्राइवेट है तो दोनों आ सकता है। प्राइवेट है तो इट इज नॉट ओनली ऑपरेटिंग, इट कैन बी, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। आईपीओ मतलब पब्लिकली अवेलेबल है। तो नॉर्मल नंबर ऑफ शेयर्स तो किसी नॉर्मल के लिए भी हो सकता है ना, इशुएंस ऑफ शेयर्स। ये तो पब्लिक होगा तो ही होगा। इफ लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी, तो एफपीओ बोलते हैं हम। नॉर्मली तो शेयर इशू होते हैं ना कंपनीज में, डिपेंड, पब्लिक है, अज्यूमिंग हम पब्लिक की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी तो एफपीओ होगा। बट इशुएंस ऑफ शेयर्स, ओके। अच्छा, बट उसने ना शेयर्स इशू किए हैं 1 अक्टूबर को, ओके, चलिए, से 1 अगस्त को उसने इशू किया है। फर्स्ट जुलाई, लेट्स कीप इट, 1 जुलाई को उसने इशू किया है, ओके। इशू किया है 1 लाख शेयर्स, तो तुम्हारे टोटल शेयर्स हो गए 3 लाख रुपए। हाँ, जैनी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ऐसी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर्स थे तुम्हारे पास, तुमने और नए शेयर्स इशू किए, नए इन्वेस्टर्स को तुमने तुम्हारे कंपनी में लाया, पर वो तुमने इशू किया 1 जुलाई को। तो अभी तुम्हारी, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, बट आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है? व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स? या, अंकित इज राइट। सो व्हाट वी डू इज, काउंट करते हैं। अच्छा, जुलाई इज फर्स्ट था, 1 जुलाई, सो जुलाई एक महीना, जुलाई, अगस्त इज 2, सितंबर 3, अगस्त 4, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, एंड बाकी के 3 महीने। तो 9 डिवाइड बाय 12,
योर टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज ओनली 75। तो जब ईपीएस कैलकुलेट करोगे वो साल का, तो ईपीएस विल बी कैलकुलेटेड ऑन 2,75,000 एंड नॉट ऑन 3 लाख। ये भी एनआईएसएम के एग्जाम में पूछते हैं। 2,75,000 पे, तो याद रखना आउटस्टैंडिंग शेयर्स। एंड वो कब इशू होगा? फर्स्ट को हो गए। अच्छा गाइस, इफ आई टॉक 30th को हो गए तो 31 जुलाई को, 31 जुलाई को हुए तो क्या होगा? 8/12। अच्छा अगर मैं बोलूं, एक कभी आता नहीं एग्जाम में, बट स्टिल मैं बोलूं 15 जुलाई को हो गया, अभी क्या करोगे? अभी कैसे करोगे अंकित? मे बी 8.5। अच्छा, 8 जुलाई क्या करोगे अभी? 8 जुलाई को सकते हैं 0.08 बाय डेज। हाँ, टोटल नंबर ऑफ डेज। हाँ, तो ये याद करो। अभी टोटल नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? अज्यूमिंग तेरा 365 डेज, 365 में यूज कितने हो गए? अप्रैल के 30, अप्रैल, मई के 31, जून के 30 और जुलाई के 8। 9 10 days has been used। तो आउटस्टैंडिंग कितने दिन तक है ये? इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 266 days। तो व्हेन यू डू, तो आउटस्टैंडिंग इज 266 डिवाइड बाय 365 इंटू 1 लाख। हो गया 72,000 शेयर्स। क्या क्या किया मैंने? 19 आने को पहले मैंने 8 जुलाई तक डेज काउंट किया, कितने डेज हो गए। क्या तुम 30 भी ले सकते हो, नो हार्म इन दैट। जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, 30 30 30 ले सकते हो। पर 30 30 लोगे तो यहाँ पे 360 लेना, याद करना। यू हैव टू टेक इट 360 ओवर ईयर। अज्यूमिंग नहीं था, पर हम 365 ही अज्यूम करते हैं। तो वो भी बोलते लीप ईयर है, कभी कभी ऐसा होता है लीप ईयर है। तो याद रखना, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो अभी 366 लोगे। अगर ये बोलते हैं ये लीप ईयर है तो क्या लोगे? 366। ओके। ये सब छोटे मोटे चीजें आते हैं। लीप ईयर आई एम नॉट श्योर, मुझे तो आया नहीं कभी एग्जाम में, बट अगर आता है तो ध्यान रखना 365 नहीं 366 लेना है फिर। ओके, गुड। तो हमारे आज हमने किया माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तुम्हारा, हाँ, विथ एक ईपीएस में मैं गया जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि वो ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है। ईपीएस का फॉर्मूला हमने किया। क्या ओके फाइन। अच्छा, अब हम बैलेंस शीट पे और नीचे आते हैं। हमारे क्या क्या इक्विटी, इतने पैसे रेस किए, डिवेंचर्स रेस किए, प्रॉफिट कमाया। अब वो सब कहाँ पे जाता है पैसा? ये सब इतना सब पैसा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में ऐड कर देता हूँ। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, समझा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पहले तो इफ यू हैव अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन दैट कंपनी तो ही वो। अच्छा हाँ, अगर ये 100% होगा ना, होल्ली ओन सब्सिडरी, ठीक है। इफ इट वॉज अ होल्ली ओन सब्सिडरी 100 है तो अलग से नहीं आएगा। अगर ये 100% होता, इट वुड नॉट कम। तो यहाँ पे 10 नहीं आता, ये पूरा फिर कंपनी का ही हो गया। ओके, ये फिर नए शेयर होल्डर्स नहीं है कोई, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट इसी में आ जाएगा। तो उसमें हमको समझते नहीं सब्सिडी के कौन से, स्टैंडर्ड के कौन से। सब्सिडरी है वो, बट इज ओनली ओन, तो उसका अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अच्छा गाइस, अगर मुझे बता, भी एक क्वेश्चन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी में ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? मतलब जैसे मैंने जब बोला था 80% है, शुड इट बी 60% या शुड इट बी 80%? विच इज बेटर? विच इज बेटर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक बार वापस। So why 80%, Mansu? Why not 60%? If I would have like to ask a question, ऐसा क्यों? Depending on performance of the company. तब तक others are answering, I will just give back the week.
व्हाट इज माय इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट मैंने ये बोला है कि अगर 1,000 रुपए, मेरी कंपनी है स्टैंड अलोन कंपनी जो 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, बट मैंने आरके एडवाइजरी में इन्वेस्ट भी किया है 60%। 60% तो ऑब्वियसली आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं ओनर हूँ कंपनी का, तो मुझे तो बट मैंने प्रॉफिट, भले ये आरके एडवाइजरी का प्रॉफिट सर। तो आरके एडवाइजरी का भले प्रॉफिट तो 50%, 50 रुपीज किया है, पर उसमें से पूरा थोड़ी मेरा है। मेरा तो सिर्फ 60% ही है। बट क्योंकि मेरी कंपनी पूरी है, तो मैं इसको कंसोलिडेट में तो पूरा ही लिखूंगा। बट इन्वेस्टर्स को बताने के लिए मैं ये बोलूंगा कि इसमें से जो 50 में से 40% नहीं बचा है, फिर मैंने 80 लिया था, 50 का 80% हो गया 10। तो 10 रुपए जो है वो मेरे कंपनी का पार्ट है ही नहीं, वो किसी और का है। मतलब ये 20% जिसी के पास भी है, जैसे मेरा फ्रेंड है उसके पास 20% होल्डिंग है, तो ये 10 रुपया उसका हुआ। अच्छा गाइस ना, ये बताओ, आई विल टेल यू वन थिंग, और एक था इसमें बेसिक, दैट मेंटर नेक्स्ट ओन्स आरके एडवाइजरी, बट डज आरके एडवाइजरी हैव एनी इंटरेस्ट इन मेंटर नेक्स्ट? आरके एडवाइजरी का कोई मतलब, मेरे फ्रेंड का ना मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। मुझे है उसके बारे में इंटरेस्ट, बट उसमें इंटरेस्ट उसको मेरे बिजनेस, मतलब मेरे बिजनेस में कोई भी हो उसके बिजनेस का इम्पैक्ट नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कंपनी लॉस में जाए, उसकी प्रॉफिट कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। होता है ना कभी कभी। टाटा मोटर्स, परफेक्ट केस, परफेक्ट स्टैंड अलोन बिजनेस लॉस में, कंसोलिडेटेड है, मतलब जो एक्वायर्ड किया वही प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, तो उसमें भी कंपनी का ग्रोथ होता ही नहीं है। हाँ, कम ऑन द क्वेश्चन कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए कि नहीं है। करेक्ट गाइस, कंट्रोलिंग, इट्स अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन दैट द सब्सिडरी हमेशा फुल्ली ओन्ड ही होनी चाहिए, जस्ट दैट यू विल हैव द कंट्रोलिंग पावर। वरना अगर 80% होगी ना, तो कहना इसे वो जो दूसरा 20% वाला, उन्होंने बार बार तुम्हारे ऑपरेशन में टांग अड़ाएगा। कहना से दैट एवरी टाइम, क्योंकि 20% ही इज ओनिंग, so he might come and unnecessarily disturb your business. It is always better to have full stake. अच्छा, बट आई विल गिव यू वन रीजन कि कंपनीज यूजुअली फुल एक्वायर क्यों नहीं करते। दे ऑलवेज कीप, तुमने देखा होगा, दे ऑलवेज कीप सम 60%, 40%, 30% या 20% विद द अदर ओनर्स। यू नो व्हाई? अभी इसका कोई रीजन है? एनीवन? ये तो दिस जनरल रीजन, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। ऐसा हमेशा क्यों करते? कंपनीज नेवर बाय द एंटायर स्टेक, and the owner won't work with full efficiency. See, you are the owner, ना now, Himanshu. You are the owner. Yeah. मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी जब भी अभी मैंने जैसे अक्वायर किया है, मैं चल रहा था मेंटर नेक्स्ट, आरके एडवाइजर इज इनटू प्लेसमेंट्स, दिस इज स्पेसिफिकली इनटू इसका फंड है एक, तो मेरा एक खुद का फंड है जो मैं आई इन्वेस्ट द मनी। मतलब मेरे फ्रेंड का फंड है, ही इन्वेस्ट द मनी, मैंने उसमें 80% इन्वेस्ट किया। पर तुमको पता है गाइस, आई एम गुड एट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स। मैंने भले एक्वायर किया है इसको, but I am not that good at investing. Maybe analyst हूँ, but I am not good at investing. So I keep that ownership because if ever require कि ये business में कुछ हो जाए, so there will be a person who can take care of out of it. और if I'm taking some wrong decision, I can take a help of that owners, क्योंकि इसने इतना पैसा लगाया है बिजनेस में, so he knows more about the business. हाँ करेक्ट, टू गेट द सिनर्जी बेनिफिट, नॉट एग्जैक्टली सिनर्जी बोल सकते हो उसको, बट टू गेट द एक्सपर्टीज ऑफ द ओनर्स। ओके, नाउ आई टेल यू माय पर्सनल एग्जांपल। आई वाज अ फार्मा एनालिस्ट, ठीक है। आई वाज अ, तो क्या है, मैं बीकॉम वाला हूँ, एमबीए फाइनेंस वाला हूँ, तो फाइनेंस और फार्मा का कुछ भी लेना देना है नहीं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बीकॉम एंड फार्मा। बट सिंस आई वाज एनालिस्ट, आई वाज गुड एट numbers, but I was not good at pharma. So know what I did, guys? Any idea? You know how crazy I am? मुझे फार्मास्यूटिकल सेक्टर नहीं आने का, ऑब्वियसली, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सेक्टर टू अंडरस्टैंड। वहां पे वर्ड्स ही डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने को। सो यू थिंक ना हाउ क्रेजी एनालिस्ट बिकम, मतलब मैंने मेरे लाइफ में क्या किया है जस्ट टू हैव अ करियर, मतलब आई विल से अ स्मूथ करियर। मेरी जब शादी हुई, आई वाज लाइक 28 एट दैट टाइम, 26, 27 एट दैट टाइम।
And obviously I have to find a bride. There was no love marriage, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी. हाँ अच्छा, मैंने बोला था क्या पहले? ओके. सो जस्ट टू हैव just to have good with pharmaceutical, I was searching for a wife who was from the pharma field. My family members are like, Rishabh, why are you looking? You are a finance guy. Why you want a pharma girl? अरे ढूंढना ही है तो फिर अभी वही एरिया में ढूंढते ना, प्यार व्यार तो है नहीं. So I actually married a pharma girl. And that point in time, she doesn't understand finance. Okay, कुछ संबंध नहीं है finance का. But just because of that marriage, in my life, probably my seniors, my fund managers used to think twice before talking to me. Because pharma is a sector where finance guys don't understand. Because they know कि इसके पास Google से भी ज़्यादा knowledge है. Google can only tell you, he can get live examples of it. So that is what, that stake I have gone to, to be an analyst. Because so see how far I'm forecasting. इसको बोलते हैं forecasting. Life में forecasting करते ना. I learned all those things. कि I know what happens. I cannot call it a strategy, Jaini. मतलब I will say, this is what I planned my life for. अगर करनी है शादी, I was not having any girlfriend. मैं किसी से कोई, there was no affair and all. So what to do? If you want to find a girl, probably find in that field. It is very difficult to do that. Everyone will not get that kind of issues. But somehow we manage, our paths cross. हाँ, जब किसी की जीएफ हो, वो क्या क्या करे? तो नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते. तो भी तो उनके उसके साथ ही रहो. बिकॉज आई हैड दैट ऑप्शन टू डू इट. तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डू. This is how I planned my life. And that is why I became successful in life, because IIMs wale and IITs wale used to think twice before talking to me. Even the CI of HSBC, उसने मुझे बोला था, he asked me in an interview question, Rishabh, how will you define as a pharma analyst? You are already a finance background. Why should I take you as a pharma analyst? What expertise do you have in pharma? Apart from, obviously, from pharma. Apart from finance. What was my answer? Sir, my wife is an M-Pharm. Okay, Rishabh, when are you open to join the organization? Straight away. This was his answer. Recruiter, okay, Rishabh, when are you joining? And no salary. I actually got 80% hike on my existing CTC. This is what we analysts are so crazy enough that we will go that stage to make sure that there is no flaw in our research. तुम इधर EPS का आंसर रॉन्ग देते हो, कैसा होगा? अगर मेरे से कोई एनालिस्ट है, तुम्हारा इंटरव्यू लेता है, एंड तुम EPS का आंसर रॉन्ग देते हो, तो हम लोग ये स्टेज पे जाते हैं लाइफ में टू डू द थिंग्स परफेक्टली. एंड तुम इतना MBA कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, CFA कर रहे हो, एंड एक पैड EPS का आंसर रॉन्ग देते हो. नॉट फेयर, गाइस. ओके, फाइन, लॉट्स जोक. अच्छा, अभी हम जाते हैं थोड़ा क्विकली ऑन प्लांट प्रॉपर्टी के ऊपर. अभी ये पैसे का करेंगे क्या? ऑब्वियसली वी बाय अ plant property equipment. So my brother is a doctor and he works for a pharma sector. Great Jenny. हाँ जैनी, उसके पहले फाइनेंस सीख लेना, फार्मा सीखने के पहले. वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा. फार्मा तो बाद में सीख सकते हैं. दैट इज नॉट द प्रायोरिटी. MBA कर रहे, इतना डिटेल नहीं होता कॉलेज में. अभी आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है. यू हैव टू लर्न इट. मैं तो सेशन लेता ही हूँ, बट काफी यूट्यूब पे काफी नॉलेज है. यू हैव टू बिल्ड अप. दैट इज एन एक्सक्यूज, गाइस. मतलब ऐसा नहीं है कि MBA में कुछ करवा रहे हैं. यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम योर ओन एंड. यू हैव टू भी. MBA में आई कैन अंडरस्टैंड. सी, मैं भी MBA प्रोफेसर हूँ. I can understand that kind of knowledge is not, because you don't meet an analyst ना. MBA कॉलेज में तुम एनालिस्ट से बात करते हो क्या? प्रोफेसर थोड़ी एनालिस्ट होते. दे हैव नेवर वर्कड इन IBs. पर ऐसे कोई प्रोफेसर आते तुम्हारे कॉलेज में, हु इज इनटू IB, ऑलरेडी काम कर चुके हैं,
तो उनके साथ तो पकड़ के रहना, उनको भले उनसे जो भले सीधा सिखाने में वो कैसे भी हो, एक्सपीरियंस उनका बहुत मैटर होता है। बट सीखना तुमको ही है गाइस, वंशिका देवी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। ऐसा ही तुमको तो नॉलेज तुम्हारा खुद का बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। ओके, लेट्स गो टू पीपी, प्लांट प्रॉपर्टी। अभी इसका क्या करोगे तुम? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट खरीदोगे। अच्छा, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स आर परचेज एट कॉस्ट, करेक्ट। पीपी या परचेज एट कॉस्ट, तो इसका ना मैं एक शेड्यूल नोट बनाता हूँ। तो कैसा होता है? ओपनिंग बैलेंस, यू एड, यू सब्ट्रैक्ट समथिंग, एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा पीपी का। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लेट अस से द ओपनिंग बैलेंस वाज जीरो। चलो मैं कर लेता हूं, मेरे पास ना ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जीरो कर लो। एड, you add purchase of assets. Okay, you add purchase of assets. Purchase of assets. Okay, one question. Huh. Buying a car, asset or an expense? Asset or an expense? Those are my students. This is a trick question. Expense or an asset? हाँ, depreciation नहीं, asset or expense. If your company uses, then asset. पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, मेरी पर्सनल गाड़ी है, खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ मैं। एक्सपेंस है या एसेट है? अच्छा, अगर कंपनी के लिए किया तो एसेट हो गई। कि तुम जो बोलते हैं यूज फॉर कंपनी, आई से मेरी भी कंपनी है ना, मेंटर नेक्स्ट। मुझे गाड़ी की जरूरत है मेंटर नेक्स्ट चलाने के लिए, ऑनलाइन सेशन लेने के लिए मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो मेरी गाड़ी एक्सपेंस हो गई। मेरी गाड़ी एक्सपेंस हो गई। इज इट व्हाट यू मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स एन एसेट्स एंड लार्जर। ओके, सी, कार इज एन एसेट। कार इज एन एसेट। नहीं हिमांशी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा डिफाइन नहीं होता है कि कार पर्सनल में एक्सपेंस हो गया और कंपनी के लिए एसेट हो गई। तुम्हारा जो एसेट का डेफिनेशन है ना, वही गलत है। तुमने आज तक लाइफ में तुमने एसेट का डेफिनेशन ही गलत सुना है। एसेट्स, so can you tell what is the definition of assets? I just want to hear it from you guys. What do you mean by an asset? What do you mean by asset? I'd like to ask you a question. Which is used in business, which will generate future economic benefit, that has a resale value, give long-term benefit, appreciable asset, which has money value, which have a monetary value, which has a resale value नहीं वंशिका, which has a value भी चलेगा, which is being owned and generate future economic benefits. ये जो बोलते हैं ना, which is owned and generate future economic benefits, this is not the right way to answer it. मैं बोलता हूं एसेट, काफी लोग ने अच्छा आंसर दिया। एसेट इज समथिंग दैट हैज वैल्यू। एसेट इज समथिंग दैट हैज वैल्यू रिमेनिंग इन इट, उसको हम एसेट बोलते हैं। बट एसेट्स आर समथिंग दैट हैज वैल्यू इन इट, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। तो कार में भी वैल्यू होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, वन इज डेप्रिसिएटिंग एसेट एंड वन इज इन्वेस्टिंग एसेट। कैश जनरेटिंग एसेट एंड ऑपरेटिंग एसेट्स, दो पार्ट होते हैं। देर इज एन ऑपरेटिंग एसेट्स एंड देर आर कैश जनरेटिंग एसेट्स। कैश जनरेटिंग एसेट्स या जो एप्रिशिएटेड होते हैं, जैसे होते हैं गोल्ड, बॉन्ड्स, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, वो सब एसेट विच आर एप्रिशिएटिंग। एंड वन इज योर एसेट्स विच आर डेप्रिशिएटिंग। अभी वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स ना, ये तुम्हारे एक्सपेंस ही होते हैं। इट इज नेवर कॉल एन एसेट। वो एसेट इसके लिए बोला जाता है बिकॉज उसकी कोई वैल्यू बाकी है। तुम तुम्हारी आज कार बाहर बेचने जाओ तो उसको कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। दैट इज द ओनली रीजन इट इज कॉल्ड अ एसेट, वरना इट इज एन एक्सपेंस ओनली। कभी तुमने ये वर्ड सुना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर? सुना होगा ना, तुम फाइनेंस वाले हो, ये वर्ड तो सुना ही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तभी क्यों एक्सपेंड दिखते हैं, फिर उसको क्या एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं? वही बोलते हैं ना, परचेज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी इक्विपमेंट इज योर कैपेक्स, शॉर्ट फॉर्म में उसको, यस इट इज कॉल्ड कैपेक्स। तो क्या हो गया, एक्सपेंस है ना वो, इट्स एन एक्सपेंस। सो बाइंग अ कार प्रोबेबली इट्स एन एक्सपेंस, सर इट इज कॉल्ड एन एसेट जस्ट बिकॉज इट हैज वैल्यू रिमेनिंग इन इट। इट इज कॉल्ड एन एसेट बिकॉज इट हैज अ वैल्यू। तो मेरी पर्सनल कार भी एसेट ही हुई, कंपनी के लिए यूज करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसमें वैल्यू रिमेनिंग है। मेरे घर पे जो मिल्क पड़ा है ना, वो भी एसेट है। पता है क्यों? मेरा अगर नेबर आता है मिल्क दूध मांगने को, कहना गिव हिम, कहना गिव हिम, यस और नो, इतना ही बताओ। क्यों? तुम्हारे नेबर तुम्हारे घर पे दूध मांगने दोगे ना तुम उसको? एंड कहने से यू कैन ऑल्सो टेक मनी फ्रॉम हिम। अगर 10 लीटर दूध वो मांगने आए तो फुकट दोगे उसको? So assets are something that has value. So it can also be any minimalistic thing जिसका तुम्हारे घर पे value, तुम्हारी ग्रोसरीज भी है ना, वो भी एसेट हो गई है because you have not used it, and that is the reason we say assets. And जो use part होता है, we take it as depreciation. What is the difference between asset and a capex? Asset is something that has value. तो वो तुमको डिफाइन करना है कि बाइंग अ कार एंड बाइंग अ गोल्ड, क्या फर्क है दोनों में? दिस इज इन्वेस्टमेंट बिकॉज इसकी वैल्यू बढ़ेगी, या तुमने क्यों खरीदा है, यू हैव परचेज इट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू, करेक्ट? तुमने परचेज किया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ परचेजिंग? अच्छा, इट इज नॉट ओनली हिमांशु, वन इज एप्रिशिएट वन इज डेप्रिशिएटेड, सिर्फ एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन नहीं आता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बाइंग अ गोल्ड? दैट यू एक्सपेक्ट द वैल्यू टू इंक्रीज, बट डू यू वैल्यू अ कार इन एक्सपेक्टेशन दैट द वैल्यू विल इंक्रीज? कि मैं हरी गाड़ी 10 लाख की लेता हूँ, 2 साल बाद इसकी गाड़ी 12 लाख हो जाएगी? नो। अच्छा, तो इसमें प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी है। तो अगर इफ यू टेक एप्रिसिएशन की बात में, तो इसमें इंटरवल में लास्ट ईयर एप्रिसिएशन, तो ये पीपी भी एप्रिशिएट होता है, प्रॉपर्टी भी एप्रिशिएट होती है, तो उसको कैपेक्स क्यों बोलते हैं? सो पीपी एप्रिशिएट, बट तुमने खरीदा है क्या? तुमने जब ऑफिस की प्रॉपर्टी लेते हो, ऑफिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेते हो, ये सोच के लेते हो कि आगे जाके इसको बेचूंगा मैं? इज दिस द पर्पस, या उसमें बिजनेस करना है? इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर तो तुमको इंटेंशन समझता कि तुम उसको यूज कर रहे हो ना, तुम बेचने के हिसाब से नहीं खरीदा था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो पीपी को अगर तुम बोलते हो अनिकेत, तो पीपी इज एन कैपेक्स। ये सब तुम्हारे कैपेक्स हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट ना, गोल्ड इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, बिकॉज इस पे वो डेप्रिसिएशन आएगा, इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, इस पे आएंगे गेन्स एंड लॉसेस। गोल्ड का वैल्यू बढ़ता है तो गेन, इफ इट डिक्लाइन इट इज अ लॉस, सॉरी, इट्स अ लॉस। ओके, तो समझा व्हाट इज द डिफरेंस? कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स इज समथिंग दैट यू परचेज फॉर यूज, एंड इन्वेस्टमेंट ये गोल्ड है। अच्छा, अभी और एक क्वेश्चन ऑन दिस डेप्रिसिएशन पार्ट। यू सी व्हाट काइंड ऑफ, मतलब दिस आर ऑल बेसिक क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग। सो एज एन एनालिस्ट, ये सब तुमको पता होना चाहिए। कैपेक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपेक्स क्यों बोलते हैं, एसेट क्या होता है? एसेट इंक्रीजिंग इज गुड साइन और बैड साइन? माई एसेट्स आर इंक्रीजिंग, पीपी इंक्रीज हो रही है, एसेट इज अ एसेट इंक्रीजिंग इज अ गुड साइन। ना आई गेट यू मोर, मैं थोड़ा और पर्सनल जाता हूँ। मैंने अभी, तुमने देखा होगा, है परचेज अ मर्सिडीज, करेक्ट? बिजनेस के लिए कुछ है उसका यूज। मेरे पास पहले मारुति थी 10 लाख की, अभी मैंने मर्सिडीज खरीदी 1 करोड़ की। एसेट इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, यस ना? गुड साइन, गुड साइन। थिंक फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव। मैंने एक ली, मैंने 2 मर्सिडीज लिए, ठीक है? आई टुक 2 मर्सिडीज, एसेट तो इंक्रीज हुआ। हाँ, बिजनेस नाम पे लिए मैंने।
हाँ, increase in asset turnover, right Bipin? Increase in asset turnover should be said as a right. मतलब अगर मैंने मर्सिडीज ली है तो अगर मैं पहले सेल्स 10 लाख का करने का, तो अभी मेरे सेल्स 1 करोड़ के होने चाहिए. अगर 10 टाइम्स मैं सेल्स कर रहा हूँ, सॉरी, इफ मैं सेल्स 1 करोड़ का कर रहा था, तो एटलीस्ट आई शुड डू अ सेल्स ऑफ अराउंड 20 करोड़, तब देन ओनली इट मेक सेंस. Asset turnover. So if question is asked in the interview, if question is asked in the interview that is it asset increasing is a good sign? हाँ sir, in absence of information, asset increasing is a good sign. But I will also look at the asset turnover, because only increasing asset and not increasing the turnover can said to be a negative sign as well. So asset, तो हमने आज रेशियो भी किया. It's called your asset turnover. मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ. Asset, यहाँ पे लिखता हूँ. Asset turnover is also important. ओनली बिकॉज ये तुमने दो चीजें मैं तुमको पूछी. तुमने पूछा एसेट इंक्रीजिंग इज अ गुड साइन, बट जब मैं पर्सनल लेवल पे आया तो इट इज बैड साइन हो गया. हाँ, ऐसा होता है. इज इट हाउ इट वर्क्स? फाइनेंस ऐसा बढ़ता है. थोड़े टाइम पहले एसेट इंक्रीजिंग वाज सेट टू बी अ बेस्ट साइन, नाउ इट इज सेट टू बी अ बैड साइन. ऐसा नहीं होता ना. तो टर्नओवर देखना तुमको, वो याद रखो. तो वी हैव लर्न टर्नओवर का क्या फॉर्मूला है. देयर इज नो फॉर्मूला. फॉर्मूला नहीं है ये. 1 रुपए पे मैं कितना सेल्स कर रहा हूँ, 1 रुपए पे मैं कितना सेल्स कर रहा हूँ, या सेल्स बाय एवरेज टोटल एसेट्स. मतलब मेरे पास 10 लाख के एसेट्स है, तो उसमें मैं 10 लाख के सेल्स कर रहा हूँ. सॉरी, 10 लाख के एसेट है तो 1 करोड़ का मैं उस पर सेल्स कर रहा हूँ. दैट इज 10 टाइम्स. भूलना मत, ये फॉर्मूलाज नहीं है. दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज पर्सनल पर्सनल पार्ट. जैसे अभी मैंने गाड़ी ली है, तो गाइस इट शुड इंक्रीज माई वैल्यू ना. इफ आई हैव टेकन अ मर्सिडीज, प्रोबेबली आई नीड टू ग्रो माई बिजनेस. अगर मैं बिजनेस ग्रो ही नहीं करता, तो माई डिसीजन ऑफ टेकिंग अ मर्सिडीज वॉज टोटली फ्लॉप. अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पर्सनल इज डिफरेंट. नहीं, एसेट वैल्यू नहीं मानसवी, सेल्स बाय. तुम प्रॉपर ये एसेट लेते क्यों हो गाइस? व्हाई डू यू परचेज एन एसेट? क्या जरूरत है एसेट परचेज करने की? तुमने एक जगह ली, प्रॉपर्टी ली, मतलब वही प्लांट लिया, मशीनरी ली. व्हाई यू टेक गाइस, व्हाई यू टेक फॉर प्रॉपर्टी? टू इंक्रीज रेवेन्यू, फॉर एक्सपांशन. एक्सपांशन मतलब क्या? इंक्रीज रेवेन्यू. रन द बिजनेस नहीं देवी, इंक्रीज द सेल्स ना. रन द बिजनेस तो इंक्रीज कैपेसिटी, इंप्रूवमेंट. इफिशिएंसी भी नहीं चाहते. इट डजंट मीन एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. एफिशिएंसी तो अलग पार्ट हो. यू टेक इट स्ट्रेट आंसर. हम कितने दिया स्ट्रेट आंसर? टू इंक्रीज सेल्स. क्यों लेते हो तुम मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए? तुम बोलते हो ग्रोथ. ग्रोथ मतलब क्या? इंक्रीज इन सेल्स. तो अगर 1 रुपया डाला, इसका क्या मतलब? हमने 10 लाख डाले, तो सेल्स कितने होने चाहिए? 1 करोड़. अगर होते तो 10 टाइम्स. जैसे अगर मैं बोलूं मैंने 2 करोड़ डाले, बट अभी ना मेरे सेल्स तो बढ़ा है, ठीक है, बट मेरा एसेट टर्नओवर 5 हो गया. मतलब हाउ मच सेल्स आई एम डूइंग गाइस? 1 करोड़ का ही. तुम क्या पता इधर बोलोगे सर आपके तो सेल्स 1 करोड़ के 10 करोड़ हो गए. तुम बोलोगे सर 10 टाइम इंक्रीज. इज इट एक्चुअली एन इंक्रीज? इज इट इफिशिएंट? तो ये इफिशिएंसी पे आया जागरूक. दिस इज एफिशिएंसी. नाउ इज इट एफिशिएंट? आर यू यूजिंग योर एसेट एफिशिएंटली? तुम 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में 1 करोड़ कमा रहे थे, पर अभी 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में तुम सिर्फ 10 करोड़ का कमा रहे हो. दैट इज ओनली 5 टाइम्स. सो दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी. मतलब ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इज वर्थलेस, डजंट मेक सेंस. भले तुम्हारे सेल्स 10 टाइम्स हुए, द ग्रोथ इज 100%. 10 टाइम्स, नॉट योर 100%. 10 टाइम्स. तो इट डजंट मीन दैट्स अ गुड कंपनी. तो ये एफिशिएंसी रेशियोस, राइट. तो अभी ये मैं बोल रहा हूँ कीप इट सिंपल. मैं 1 लाख के मैंने एसेट्स लिए. कैसे इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगता है? हाउ इज डेप्रिसिएशन डिफाइंड? मतलब कैसे आता है वो रेट्स जो आते हैं, वो कैसे आते हैं? हाउ इज डेप्रिसिएशन रेट डिफाइंड? डिफरेंट मैटर लाइक
नहीं ऐसा नहीं, SLM WDV नहीं। रेट रेट कैसे डिफाइन होता है? वो तो मेथड से तो कोई भी ना, रेट कैसे आया? हाँ, कॉस्ट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। अजय अंकित ने लिखा है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज कॉमन सेंस। इट इज कॉमन सेंस से 10 लाख। गाइस मैंने अर्टिगा लिया अभी एक, ठीक है, नहीं बलेनो ली, सॉरी। आई टुक अ बलेनो, assuming residual value is zero. Assuming residual value is zero, I took a Baleno for 10 lakhs. कितने साल चलाऊंगा मैं बलेनो? क्या लगता है? How much years I will drive? Personal car, 100 years, 7 to 8 max, 10 years, चलो 5 to 10 years। हाँ पेट्रोल होगी तो 10, हाँ पेट्रोल ही है, बलेनो पेट्रोल में ही आती है। तो मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, लाइफ, मैं बलेनो अज्यूमिंग वो पूरी स्क्रैप हो जाएगी, रेसिडुअल वैल्यू होती है बट अभी नहीं अज्यूम करते, जस्ट टू कीप इट सिंपल। लाइफ ऑफ एसेट, मैं बोलता हूँ बलेनो की लाइफ इज 10 years। मतलब 10 साल बाद मुझे और एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, अज्यूमिंग बलेनो ही ले रही हो वापस में। तो गाइस मैंने 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए या स्पेंड किए एक साथ। अगर मैं तुमको पूछूं हर साल मैं कितना एक्सपेंस करने का, व्हाट इज माई डेली ईयरली एक्सपेंस? 10 लाख इज फॉर 10 years, तो ईयरली एक्सपेंस पता है 1 लाख क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। एंड तुम क्या बोलते हो? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, है ना? कोई बोला रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। गाइस व्हाट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट? इट इज द लाइफ ऑफ एसेट्स बीन यूज इन दैट ईयर। किसी ने पूछा व्हाट इज डेप्रिसिएशन, हाँ रिडक्शन इन वैल्यू, बट हाउ? बिकॉज यू आर यूजिंग दैट एसेट। स्ट्रेट अवे एग्जांपल देने का, सर 10 lakhs की गाड़ी, इफ द इयर्स आर 10 years, इसका मतलब वी आर स्पेंडिंग 1 लाख एवरी ईयर ऑन द कार, एवरी ईयर ऑन द कार। हाँ, स्ट्रेट आंसर, इतना एग्जाम्पल देके हमें आंसर देना होता है। सब वो ना, डिप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द कार, वैल्यू ऑफ द एसेट, ऐसा होता रहता है। फिर इट इज डिवाइड बाय एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। अभी जिन्होंने मुझे बोला एसएलएम मेथड डब्ल्यूडीवी मेथड, मैं ना 5 years लेता हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। 5 years चलाऊंगा तो कितना होगा? 2 लाख। पर अभी परसेंटेज केस कितना होगा? हाउ विल यू टेक परसेंटेज? अगर मैं तुमको सिर्फ यूजफुल लाइफ दे दूं तो ना स्ट्रेट अवे 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 20%। नहीं डेप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए ना उनकी, उसके लिए डेप्रिसिएशन नहीं, तुम्हारे पास यूजफुल लाइफ है तो। सो अगर यूजफुल लाइफ भी है तुम्हारे पास तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि 20% का रेट है इसका डेप्रिसिएशन का। ओके, स्ट्रेट अवे दिस इज हाउ यू आंसर। कि अगर किसी ने पूछा कि डेप्रिसिएशन रेट कैसे फाइंड करते हैं, या 5 साल है, अगर तुम पूछेगा नहीं कोई, बट अगर कल जाओ और किसी मैनेजर के साथ वो बोले यूजफुल लाइफ इज 10 years, 10 years मतलब 1 डिवाइड बाय 10, मतलब 10% इज डेप्रिसिएशन, हर साल ये एसेट 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है। एंड दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ द एसेट इज, करेक्ट? नाउ गाइस assuming दिस इज एसएलएम मेथड, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो 10 लाख पे 20% रिटर्न डाउन हो रहा है, हर साल वो कम कम वैल्यू होती जा रही है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन होगी तो कैसे होगा? 20,000 एट द स्ट्रेट, बट assuming इट इज एन एसएलएम मेथड, सो कैन आई से ये ओपनिंग होगा, नेक्स्ट ईयर का हाउ मच विल डेप्रिसिएशन? पता है 8 लाख पे होगा, राइट? ओपनिंग बाय डेप्रिसिएशन तो 6 लाख। अगर मैं ये फ्रीज कर देता हूँ, सॉरी, विल फ्रीज दिस। मुझे वो क्वेश्चन पूछना है इसके बाद। मतलब डेप्रिसिएशन विल बी लेस इन डब्ल्यूडी मेथड इन नेक्स्ट ईयर। हाँ, तो हर साल वो कम कम होते जाएगा, करेक्ट? मैं सिर्फ करता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। ओके, मैं सिर्फ हाउ मच ईयर आई कैन टेक?
अच्छा, 7th ईयर का कोई डेप्रिसिएशन बता पाओगे मुझे, कितना होगा 7th ईयर का? कोई कर पाओगे? कैन डू मल्टीप्लाई बाय सेम सेम? एम आई राइट? नहीं बता रहा, इज दिस राइट? नहीं, इज नॉट राइट? यस और नो? व्हाई नो? जैनी? तो होगा ना डिप्रेशन 8, 9, 10, इसमें ड्रैग को ड्रैग ही करना है ना। 20%, यहाँ सही है। ट्रैक करेक्ट। कह दो 10 साल बाद गाड़ी की लाइफ होगी, वैल्यू होगी 1 लाख। एम आई राइट? 10 साल बाद गाड़ी की। सो गाइस इन दिस, आई नो यू गाइस आर नॉट आंसरिंग। इन दिस देयर इज अ ट्रिक क्वेश्चन। यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 साल तक ही होती है। यूजफुल लाइफ उसने पता ना, मैं भी किया, यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 लाख, 5 लाख, 5%, सॉरी, 5 साल की होती है। तो एट द एंड ऑफ 5, यू नो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन? And depreciation will be the value of the opening balance. This is how इन ऐसे में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 में कर मत करना कि 5 में वापस इसको 5% लेना। इट इज द फुल वैल्यू दैट इज देयर। ओके, ये याद रखो। 5th ईयर का डेप्रेशन विल बी द एंटायर वैल्यू। अच्छा, अभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आते नहीं है इंटरव्यू में। आता क्या है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं, दिस इज हाउ स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है। स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है। अभी ना एक क्वेश्चन आता है कि अगर, see, if, listen to this careful, listen to this carefully, अगर मेरा depreciation on an annual basis is 2 lakh, my depreciation, annual depreciation is 2 lakh, ठीक है? एंड मेरा नेट वैल्यू जो बचा है, दिस इज कॉल्ड नेट वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं नेट वैल्यू। मेरा नेट वैल्यू बचा है 6 लाख। ओके, नहीं सॉरी, मेरा नेट वैल्यू बचा है 8 लाख। का इस एसेट की कितनी लाइफ बची है? हाउ मच इज द लाइफ ऑफ एसेट रिमेनिंग? 4 years? 8 डिवाइड बाय, सॉरी, हाँ, 8 डिवाइड बाय 2 स्टेट है। मतलब क्या, हर साल अगर 2-2 लाख डिक्लाइन हो रही है तो मेरी वैल्यू इज, अच्छा अच्छा, अगर मैं बोलूं ना, यू हैव टू फाइंड द एसेट लाइफ। एसेट की लाइफ, तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इज 5 years। ओके, एंड नाउ अगेन अ क्वेश्चन, ये बेसिक वाला। लाइफ बची है 4 years, तो डेप्रेशन कितना होगा हर साल का? 2 lakhs स्ट्रेट, वो दैट इज स्ट्रेट, यही हमने किया था। तो ये दो क्वेश्चंस याद रखना, आते हैं रेगुलरली, कि अगर एसेट की लेता है, ऐसा बना के रखना कि अगर डेप्रिसिएशन एसेट एस्टिमेटेड लाइफ कितनी बाकी है एसेट की, पता है, इस पर से पता चलता है। ये कब यूज होता है फाइनेंस में, कभी कभी यूज होता है कि 4 लाख है और 2 लाख हर साल एनुअली जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके सिर्फ अभी तक 2 साल ही बचे, 2 साल बाद इसको एक बड़ा कैपेक्स करने की जरूरत पड़ेगी। और हर साल 2-2 लाख अगर जा रहे हैं, इफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू लाख, सॉरी, अगर नेट वैल्यू इज 8 lakhs, एंड अगर 4 साल की बची है तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसका डेप्रिसिएशन विल बी 2 lakhs। तो ये जब फाइनेंशियल मॉडल करते हैं तभी ये काम में आता है। ऐसा क्योंकि वहां पे कुछ नहीं मिलता, ऐसे कुछ रैंडम होता है नंबर, ये एसेट है। अभी एस्टिमेटेड लाइफ तुमको पता है 15 बची है, तो क्यों दिखता है उसमें एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है उसकी? तो क्या करोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट दिस डिवाइड बाय, अभी बैलेंस शीट पे क्या होता है, बैलेंस शीट पे यू डोंट गेट दिस, ऐसा ये एस्टिमेटेड इतनी लाइफ बची है वो नहीं मिलता।
बट एनुअल डेप्रिसिएशन मिलता है और नेट वैल्यू मिल जाता है। डेप्रिसिएशन एनुअल कहाँ पे मिलेगा? पीएनएल में। एंड नेट एसेट वैल्यू तुमको तुम्हारे क्रॉस ब्लॉक में मिल जाएगी। ओके, फेयर इनफ। Asset light, asset turnover. So today, what all things we learned? First was our day two. याद रखना वो माइनॉरिटी फर्स्ट तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। स्टैंड अलोन कंसोल क्या होता है? गॉट इट। स्टैंड अलोन कंसोल क्या होता है? स्टैंड अलोन आई होप सबको पता होगा, बट स्टिल। अच्छा, एक बोलना भूल गया। स्टैंड अलोन कंसोल में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ना, इट इज नॉट मैंडेटरी बाय सेबी टू गिव अप। भले सब सब कंपनीज देती है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये कभी कभी आता है वर्ड। स्टैंड अलोन और कंपल्सरी डिस्क्लोज करना, बट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना इट इज नॉट कंपल्सरी। बट सब कंपनीज करते हैं, दैट्स वॉलंटरीली, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। तो ये याद रखो, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देना कंपल्सरी नहीं है। ऐसे कितने सारे कंपनीज मैंने देखे हैं जो सिर्फ स्टैंड अलोन रिपोर्ट ही करते हैं, जिनको कुछ छुपाना होता है, वो लोग कंसोलिडेटेड रिपोर्ट नहीं करते। हाँ, बट पूरे कंपनी का वैल्यू कंसोलिडेटेड पे ही होता है। यू जस्ट कैन नॉट से स्टैंड अलोन नंबर, तुम्हारा वैल्यू कंसोलिडेटेड लेवल पे ही होता है। And we learned about EPS, the most important. और PPE के बारे में पता है, assets are something that has asset life and depreciation, how it is calculated. कैश फ्लो से अभी किया है मैंडेटरी, आई थिंक। कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी किया है, बट सब स्टैंडर्ड नहीं है। कैश फ्लो में आई एम नॉट श्योर इट इज मैंडेटरी और नॉट, बिकॉज मैं जब एनालिस्ट था तो तभी नहीं था, तभी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आने के। हाँ सही, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वार्टरली नहीं आने के, ईयरली तो यू हैव टू गिव ना। ईयरली तो सब स्टेटमेंट देना है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लोस। हाँ, इफ यू सिंग प्राइवेट कंपनीज, वहां पे नहीं मिलता। यू डोंट गेट द कैश, कैश फ्लोस खुद ढूंढने होते हैं। तो इसका मैं एक सेशन लेने वाला हूँ कि अगर कोई कंपनी का कैश फ्लो नहीं होता, हाउ विल यू फाइंड द कैश फ्लोस। तो मैं तुमको बताऊंगा, वेबिनार कोई होगा वीकेंड पे, इफ आई एम फ्री आई विल टेक अ वेबिनार ऑन दैट, कि हाउ टू फाइंड द कैश। ये प्राइवेट इक्विटी में यूजुअली काम आता है कि पीएनएल बैलेंस शीट ही होता है, कैश फ्लोस नहीं होता है, तुम खुद को बनाने होता है। ओके, पीपी, एसेट लाइफ, एंड एनीथिंग एल्स दैट वी लर्न टुडे? हाँ, ये भी था टॉपिक। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स याद रखना, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, हाउ टू फाइंड, और सब क्वेश्चन आते ही है। टू फाइंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स वेरी इजी। एनआईएसएम करने जाओ तो बहुत इजी है, बट माई पर्पज इज नॉट फॉर यू टू क्लियर द एनआईएसएम एग्जाम, माई पर्पज इज टू मेक यू क्लियर योर इंटरव्यूज। एग्जाम तो कोई भी क्लियर हो सकता है। फाइन, टुमारो probably will start with the P&L statement. पीएनएल में है कुछ कुछ आइटम्स, तो वहां पे मार्जिन की भी बात करेगा। तो अच्छा, रेशियोज भी था यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। याद है कि और कुछ सिखाया मैंने? याद रखो, वरना वापस तुम मेरे को पूछोगे सर ये सिखाया नहीं था। जस्ट पुटिंग इट ओवर यार। स्टडी मटेरियल विल बी शेयर इन द ग्रुप। हाँ, वो होने तो ये चाहिए क्या तुम लोग को? ये नोट्स चाहिए? यू ऑल गाइस वांट दिस नोट्स? चाहिए क्या नोट्स? पर मैंने तो सिर्फ रैंडमली ही किया है, नो पुट एनीथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, ठीक है। मैं एक मैं एक शेयर करता हूँ ड्राइव का लिंक। हाँ, बट फिल द फॉर्म, ताकि मुझे तुम्हारा जीमेल आईडी मिला, देन आई कैन गिव यू द एक्सेस। आई डोंट वांट टू गिव इट टू एवरीवन, ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड दिस, पर तुम ले लो, सीखने के लिए ले लो, नो हार्म इन दैट। जस्ट टू नॉट, आई डोंट गिव इट डाउनलोड, क्योंकि वो शेयर होता है अननेसेसरी, इट कैन बी शेयर एंड ऑल। आई डोंट वांट इट टू, जो जो आ रहा है यू कैन टेक इट। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आर नॉट अवेलेबल आर्यन, रिकॉर्डिंग्स नहीं है मेरे पास। मैंने रिकॉर्ड तो की है, बट नॉट रिकॉर्डिंग दिस। Probably I will, refurbish his recordings. Can see how it is. Plan to put on YouTube. I'll show you मैं क्या plan कर. Let me show how it is work. How does it work? Recording is on. हाँ, recording है, but I am not sure कल का मैंने क्या किया recording. So recording will be really helpful. Okay. Okay. So what I will do is I will not give this as a YouTube पे, जो तुम सीख रहे हो, those who are in the class,
प्रॉब्लम आई विल शेयर अ यूट्यूब लिंक, अनलिस्टेड होगा तो तुम सब्सक्राइब करोगे तो ही तुमको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कि कौन कौन देख रहे हैं, मतलब वो इज इट वर्थ कीपिंग ऑन यूट्यूब, बिकॉज कैसा होता है लोग वहां पे देखते नहीं है, अननेसेसरी वो यूट्यूब का स्पेस खाता है। सो गिविंग अनलिस्टेड मैं करता हूँ, ये कुछ अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, बट इट इज अनलिस्टेड वन, प्लीज डोंट शेयर द लिंक, क्योंकि उनमें से ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं समझ जाएगा कि यू आर कोई और देख रहा है इसको। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि आई वाज शेयरिंग इट विद अदर, यूट्यूब पर डाला था, देन पीपल आर लाइक, सी सब सी दिस इज, मैं जो तुमको बता रहा हूँ ना, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न ओवर द इयर्स, सो आई डोंट वांट समवन टू कॉपी इट, जो भी मेरे लेवल का होगा आई डोंट वांट देम टू कॉपी इट। अच्छा एफएम कोड, हाँ ड्राइव पे दे सकते हैं, हाँ गुड ऑप्शन है, ठीक है मुझे ड्राइव पे देता हूँ मैं, फाइन, आई गिव इट ऑन ड्राइव, गुड ऑप्शन। हाँ तो मैं फॉर्म भेजता हूँ ग्रुप में, वो तुम उसका एक्सेस दे दो, मैं सब में मटेरियल उधर ही डाल देता हूँ ग्रुप में, तो तुम्हारे जीमेल आईडी देना। ऑन व्हाट्सएप, हाँ आई एम जस्ट सेंडिंग ऑन व्हाट्सएप में, वो फॉर्म मैंने बनाया था कल, आई फॉरगॉट टू सेंड, जस्ट गिव इट ऑन द रिकॉर्डिंग में भी डालता हूँ, ठीक है रिकॉर्डिंग सब डालता हूँ, गिव मी सम टाइम, विल पुट द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। ओके यस यस आई विल डू दैट। ओके निमिषा, नो इश्यूज नो इश्यूज। सो वन रिक्वेस्ट, इफ यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रोबेबली, मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, आज जो भी हमारे मॉर्निंग कॉल्स में होता है ना, आई ट्राई टू कीप गिव अ स्नैपशॉट कि हमारे पूरे मॉर्निंग कॉल्स में क्या हुआ। तो आज मैंने वही डॉलर की बात की है, आई हैव टॉक्ड अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, एंड कल एसी प्राइसेस की बात की थी कि एसी प्राइस हॉस्पिटलिटी सेक्टर वी आर ट्रैकिंग, तो फिलहाल तीन चार ही वीडियोस अपलोड की है, प्रोबेबली लुक एट इट, आई विल गिव यू लिंक व्हाट्सएप का भी, यू कैन नो हैव अ लुक, ताकि तुमको भी पता चले जब तुम मुझे मिलने आते हो शाम को तो कुछ तो सुन के आओ, जस्ट डोंट कम लाइक अ स्टूडेंट, कम लाइक एन एनालिस्ट। एनी पीडीएफ यू कैन स्टडी फॉर द एग्जाम नॉलेज पर्पस, तो अभी तो बना रहा हूँ मैं अमित पीडीएफ, आई एम जस्ट मेकिंग इट फ्रंट ऑफ यू, पीडीएफ एंड एक्सेल सो दैट यू कैन हेल्प, मैं तुमको शेयर करता हूँ, वरना अमित द पीडीएफ इज द एनआईएसएम का पीडीएफ है डायरेक्टली। गोल टारगेट टिल मार्च एंड, it all depends on Trump, how he reacts. If he creates the war, probably expect no more 5-10% rally. But silver is definitely the target. 3 लाख, 3,34,000 हो गया है, प्रॉब्ली 4-5 लाख तो जाएगा, विल टेक टाइम, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट सिल्वर डिमांड है, सिल्वर इज आई विल से इट इज लाइक अ न्यू गोल्ड नाउ, लेके भूल जाओ टाइप्स। हाँ एनआईएसएम पीडीएफ है ना, ये जो मैं शेयर करता हूँ, इट इज दैट। Sir, my MBA is going on. How should I prepare? What should I keep in mind the first year going on? Jaini, agar if you are preparing for MBA, probably try to clear as much as NISM exams you can. अभी के लिए तो फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में probably get a mentorship for report writing, financial modeling थोड़ा और डीप में सीखना, uh, तो या फिर probably get an experience, get a good experience, because शायद से बिना फाइनेंशियल मॉडलिंग के तुमको इंटर्नशिप तो नहीं मिलेगी कोई इक्विटी रिसर्च में, अगर मिलती है तो बेटर। ट्राई टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, लिंक्डइन या यूट्यूब पे, मैं वो कुछ कुछ डालता रहता हूँ अबाउट रिसेंट अपडेट्स क्या हो रहा है, एंड बी अवेलेबल विद द मार्केट्स की, मार्केट में रोज क्या हो रहा है, क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। सीरीज 8 एंड 15, या सीरीज 8 15 10 एंड 10 भी मैंने बोला है, एंड अप्रिशिएटेड 10 एंड 10 भी करते हो तो गाइस, एनआईएसएम के ना, यू कैन गेट दिस पीडीएफ ऑन गूगल ऑल्सो, तो चलो मैं भेज देता हूँ तुमको, मेरे पास है ये, send the PDF to you. Sending on the group. And as I hope everyone is there, the Reliance and research analyst too. हाँ भेज दिया, it's just uploading. Yeah, uploaded. सेक्टर सिलेक्शन, तो वो तो तुम पे है, कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करना है, इजी सेक्टर सिलेक्ट करना होता है जो भी। हिमांशी, ऑलवेज डू इट इन समवन्स गाइडेंस, अकेले अकेले करोगे तो तुमको समझेगा नहीं तुम क्या कर रहे हो, ऑलवेज हैव सम मेंटर टू वर्क अंडर, वरना तुम क्या कर रहे हो, इट विल बी जस्ट
तब जैसे ऐसा हो गया ना, वाई यू नीड अ कोच। क्रिकेट तो आता है सबको खेलने को, यू रिक्वायर अ कोच टू गाइड यू। जैनी, इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप के लिए यू शुड हैव रिपोर्ट्स, मॉडल। सर गिव यू एग्जांपल जैनी, आई एम बोध गया का स्टूडेंट था। ही रीच्ड आउट टू मी समवेयर अराउंड मार्च अप्रैल में, उसका जब जून से चालू होने वाला था कॉलेज। सो ही केम अप विथ मी, उसने वो ट्रेनिंग लिया, मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 3 मंथ्स। सो ही मेड फाइनेंशियल, 3 मंथ ही, 2 ही महीना था उसके पास। सो ही मेड फाइनेंशियल मॉडल, ही मेड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, रोज आने का कॉल पे, रोज बात करने का। सो व्हेन यू राइट समथिंग दैट ऑन योर सीवी कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं किसी एनालिस्ट के अंडर काम कर रहा हूँ, देन योर चांसेस गेट इंक्रीज। क्योंकि ऑब्वियसली वो आई एम बहुत गया से था, तो वो भी टीयर 2 कॉलेज ही है। एंड वहां से उसको टॉरस म्यूचुअल फंड में, इवन बिफोर गेटिंग इनटू द आईएम्स, उसको पहले ही जॉब मिल गया, मतलब इंटर्नशिप मिल गई। मतलब उसका इंटर्नशिप चालू अभी जनवरी से चालू होने वाला था, पर उसको लास्ट जुलाई में इंटर्नशिप मिल गई थी, इवन बिफोर द कॉलेज स्टार्टेड। तो गॉड नहीं, तो उसका नाम आशुतोष गुप्ता था। सो ही मेड रिपोर्ट, मेरे साथ रोज आने का, बात करने का, मार्केट्स में ध्यान देना क्या हो रहा है, बिकॉज एवरी डे वी हैव अ मॉर्निंग कॉल, या फिर लिसन टू द कॉल्स, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, विच सेक्टर्स आर यू फॉलोइंग, वो सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो सेक्टर्स में, विच स्टॉक विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑल, एंड ऑल दोस थिंग्स इज नेसेसरी टू गेट सिलेक्टेड फॉर रिसर्च रोल्स। वरना आज मैंने भी लिए एक इंटर्न, बट आई एम फेड अप। इफ इंटर्न में लास्ट वीक 2 लिए थे इंटर्न्स, बट इंटर्न्स को नहीं आता काम करने को। सो इफ यू हैव नेवर वर्क बिफोर अंडर एनीवन, तो प्रोबेबली इंटर्नशिप इक्विटी में मिलना भी इतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज देर इज नो वन इन द ऑफिस दैट गोना टीच यू कि मुझे इंटर्न ये रिसर्च कैसे करना सिखाओ। तुमको काम दिया गया ये काम करो, ऐसा है। तो वो काम तुमको, तुम्हारे पर भरोसा कब रखेंगे, जब तुमने कुछ किया हो। और एज रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग रेफरल, तुम्हारा भाई बहन फैमिली में कोई है जो इक्विटी में काम कर रहा है, या तुमको किसी ने रेफर किया कि जैनी इज अ गुड स्टूडेंट, इसको ले लो, मेरी जिम्मेदारी, ऐसा कोई अगर तुमको बोल सकता है तो वो। हाउ शुड आई प्रिपेयर? अभी तो इट इज डिफिकल्ट। यू कैन ज्वाइन मी, मैं सेशन ज्वाइन कर सकते हो तुम, प्रोबेबली इफ यू वांट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, सैटरडे से चालू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। बट हाँ, गारंटी तो नहीं है किसी चीज की, ऐसा है। बट यू कैन ऑलवेज शो योर कि तुमने कुछ फ्रीलांसिंग वर्क किया था किसी के लिए, यू आर वर्किंग फॉर अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स विद द कॉलेज, बिकॉज यू कैन नॉट शो एन इंटर्नशिप। सो विद द कॉलेज यू आर, ऐसा तुम बता सकते हो। विच कॉलेज में, आई नो जैन, विच कॉलेज यू आर इन? नेक्स्ट बैच प्रशांत, स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, मतलब सैटरडे से, उसके बाद प्रोबेबली फेब में होगी, मिड फेब या लेट फेब। ओके ग्रेट, दैट्स अ गुड कॉलेज। यू कैन हैव ट्रेनिंग ले सकते हो, यू कैन टेक अ ट्रेनिंग एटलीस्ट। फिर भाई मॉडल्स तो बनाने आते तुमको, यानी मॉडल्स तो बना के रखो कम से कम, नॉट मॉडल्स, रिपोर्ट राइटिंग, थोड़ा बहुत रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। हाँ, ट्रैक करना है सेक्टर्स को, ट्रैक करना, यू हैव टू प्रूव दैट व्हाई शुड आई टेक यू इनटू इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप्स। मैं तुम्हें थोड़े मॉडल्स डीप में जाना चाहिए, तुमको मॉडल समझना चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स। या अंकित, 24th से टेस्ट फ्रॉम सैटरडे, परसों से। और या विपिन, यू वांट टू नो मॉडलिंग, अभिषेक रीच्ड आउट टू यू ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विपिन? यस और नो? यस ना, हाँ यस। जनी, सेक्टर्स चूज करने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द करंट सिनेरियो। करंट क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो रोज? अगर पढ़ते हो तो उसका प्रूफ क्या है कि तुम पढ़ते हो? न्यूज लेटर्स लिखने होते हैं, आर्टिकल्स लिखने होते हैं उसके बारे में, रिसेंट अपडेट्स के बारे में। फॉलोइंग स्टॉक्स नहीं, प्रूफ क्या है, यू आर फॉलोइंग प्रूफ, वेर इट इज पोस्टेड समवेयर ऑन द सोशल मीडिया, कि लास्ट 3 मंथ्स का कोई डेट है तुम्हारे पास, कि हाँ ये मंथ में मैंने ये किया था। फॉलोइंग तो आई एम ऑल्सो फॉलोइंग आईपीएल, डजंट मीन आई एम अ गुड क्रिकेटर।
Any updates on for financial modeling post I have applied? If you have applied, you might get a reply from them ना, if possible. Modeling का कोई roles है तो वो लोग message करते हैं. If you have sent your models and all. Then it is good that you're investing, appreciate it. But मैंने बोला ना, everything with a proof. तुमने बोला इन्वेस्टमेंट किया है तुमने, तो जब इन्वेस्टमेंट किया वो डेट के पहले तुमने कोई रिसर्च किया था, कहीं किधर पोस्ट किया था, एंड वो इन्वेस्टमेंट तुमने क्या बेसिस पे लिया है, ये बताना नहीं होता कि ऐसा ऐसे किया, किधर पोस्ट किया है क्या on social media. Got it? Whenever you take a stock, it is like, why did you take a stock and where have you posted that? And तुम वहां देखो कि सर आई एम बाइंग दिस स्टॉक एज एन इक्विटी इन्वेस्टर, मेरे ये मैंने किया है, अभी यहाँ से आई एम एस्टिमेटिंग द प्राइस टू गो अप गो डाउन व्हाटएवर इट इज. अगर इन्वेस्टिंग किया तो एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप. तो फिर वो क्वार्टर्स में क्या हुआ है, तुम बोल रहे हो 3 महीने से ट्रैक कर रहे हो, कितने 3 ईयर से ट्रैक कर रहे हो. 3 ईयर्स इज लाइक 12 क्वार्टर्स. 12 क्वार्टर्स में तुमने 12 कॉन्फ्रेंस कॉल सुने क्या हो कंपनीज के जिसमें इन्वेस्ट किया तुमने, लास्ट 12 क्वार्टर्स में क्या हुआ है, व्हाट इज द न्यू अपडेट हर एक क्वार्टर में, कहाँ पे डाला तुमने अपडेट, डू यू लिसन टू द कॉन्फ्रेंस कॉल्स, है तो फिर कहा, सब एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड. थिंग्स आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग, तुम जो आज बोल रहे हो, आई विल नॉट बिलीव यू, यू कैन ऑल्सो डाई ना. तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने किसी का सुन के इन्वेस्टमेंट किया होगा. आई एम नॉट जजिंग यू, मैं रिक्रूटर की बात कर रहा हूँ. आई हैव डन रिसर्च फॉर एग्जिस्टिंग स्टॉक, प्रूफ कहाँ पे, एग्जिस्टिंग कहाँ पे किया रिसर्च करना तुमने, यू कैन नो हैव दैट, किसी के अंडर किया होगा तो बेटर. खुद करना और किसी के अंडर करना में इट्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. करंटली करंटली फाइनेंशियल ठीक नहीं है, और ऊपर से एक बात कि जब सेविंग्स कर रहे हो देन आई विल जॉइन लुकिंग. ओके. ओके प्रसाद, कैन ऑलवेज आई कीप ऑन टेकिंग ये फाइनेंस तो पढ़ लो पहले, रिसर्च रिसर्च तो ठीक है ना, फर्स्ट क्लियर है एनआईएसएम एग्जाम्स, आई विल ट्राई टू स्टार्ट एनआईएसएम वो 10A 10B भी तुम थोड़ा इन्वेस्ट कर सको. मॉर्निंग कॉल्स का मैं अपडेट डालता थी, मॉर्निंग कॉल्स आई कीप ऑन पोस्टिंग, हाँ वो तो हर दिन मैं डालता रहता हूँ. आज हमारे स्टूडेंट्स ने एक मॉर्निंग कॉल किए थे, मतलब एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था एक स्टूडेंट ने, देख लेना आज का यूट्यूब का हमारा वीडियो. 2 स्टूडेंट ने प्लेस किए थे, एक सीए था उसमें, एक सीएफए लेवल 1 था, बट उसने वो लोग ने वो रिपोर्ट्स 3 4 5 बार बनाए, तब जाके उसका एक रिपोर्ट सही हुआ. शो यू टुडे, आज मैंने अपलोड किया है, लेट मी सी, अपलोडेड इट. देख लेना, मॉर्निंग कॉल रोज हम करते रहते हैं, एनालिस्ट बनना तो एटलीस्ट फॉलो मी, कि कम से कम दिन में क्या हो रहा है ना. मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, बट दिस इज हाँ लग्जरी पटेल द स्टोरी 48, दिस वाज अपलोडेड ऑन 22nd, हाँ किया यही वाला है. लीला पैलेस, हाँ ये रहा, आज उन्होंने लीला पैलेस, ये देख लेना आज उसने लोग ने कैसे रिपोर्ट बनाया वो, से तो मैं लिंक डाल देता हूँ ग्रुप पे, पुट दिस लिंक ऑन द ग्रुप, यहाँ पे जाके देख लेना वो लोग ने रिपोर्ट कैसे बनाया, मैंने क्या क्या बताया था उसमें कि कंपनी कैसे फॉलो होती है. ओके, पुटिंग द लिस्ट, यूट्यूब चैनल का भी लिस्ट डाल देता हूँ, पुट द चैनल लिस्ट, ये देख लेना, ये ना रोज गाइस भी एवरी डे वी हैव अ कॉल, तुम फास्ट फॉलो करके देख सकते हो. 1 घंटे का कॉल होता है, तुम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में या 30 मिनट्स में खत्म कर सकते हो, 2x पे भी हिंदी में बातें होती है. तो इतना कुछ, अगर इफ यू आर गुड इनफ यू विल, मतलब इफ यू आर ओके विद हिंदी, इंग्लिश भी है, इट इज इंग्लिश हिंदी मिक्स है, यू कैन ये सुनते रहना कम से कम, यू नो देयर आर कमेंट्स व्हिच शोज पीपल आर, मैं उनको कमेंट्स बताता हूँ उनके. देयर आर पीपल ना हु एक्चुअली फॉलो मी, उसमें से 1 2 को ऐसे ही जॉब मिले, सिर्फ ये बात इंटरव्यू में जाके बात करने के, हम सब सुनने के, एंड हमने ये जाके इंटरव्यू में हमने बात की. कमेंट्स आई एम नॉट गेटिंग, वेयर आर द कमेंट्स, हाँ ये रहा, शो द कमेंट्स. थैंक यू सर, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. द रिप्लाईज एक था,
So I don't know these guys. I don't know any of these guys. Honestly, best video on internet, but feel often ask different questions just to demand breath others. As you upload it as jewelry box. So this is actually those who follow this. रोज कर रहे हैं हम रोज. Hardly there is a day I miss this. हाँ उसने ऑफेंडेड क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ. ही थॉट दैट मैं लाइव सबको चिल्ला रहा हूँ बट इट वाज इन द क्लास कि उसने कोई गलती की थी इसके लिए मैं उसको चिल्ला रहा था. दे थिंक दैट आई एम टीचिंग. तो ये सब टीचिंग वीडियोस है जो मैंने अपलोड किए थे. दे थिंक दैट मैं जानबूझ के पब्लिक फोरम पे किसी को बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए. ओके कैन हैव अ लुक. मैंने डाला है. देख लेना. कल भी मैं अपलोड करूंगा. आज तो देख लेना आज का तो बिकॉज टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंपनी प्रोफाइल. उसने कैसा अच्छे से कंपनी प्रोफाइल बनाया. भी मिस्टेक्स है उसमें बट ही हैज मेड इट. काफी मेहनत करके बनाया वो. So your sessions will go from 24th till what is the peak? हाँ अंकित so sessions goes ठीक कैसा है ना. These sessions are continuous. Every weekend it is. I don't call it as a session. I call it as something. मेंटरशिप है जहाँ पे तुम जब तक जॉब नहीं मिलता ना तब तक काम करते रहो. 3 महीना लगता है मिलने को. 3 महीना लगता है सब कुछ समझने को. यूजुअली एक एक चीज तुम हर वीकेंड एक एक नई चीज सीखते हो. यू गेट सीखते हो तुम मुझे अपडेट होता है तुम्हारा. तुम कुछ बनाते हो तो वी ऑल्सो हैव अ रिव्यू सेशन कि हम सिर्फ रिव्यू करते हैं कि तुमने जो बनाया उस पर. एंड देन टिल यू गेट अ रोल वी आर विथ यू. अरे तुम मेरे साथ काम ही करो ना. तुम ऐसा मत बोलो कि कोर्स है कुछ मैं सिखा रहा हूँ. मैं वापस बोलता हूँ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग. मुझे तुम मेरे पास आते हो तुम मैं एनालिस्ट हूँ. तुम मेरे से कुछ सीख के जाओ. ये मत सीखो कि फाइनेंस क्या होता है. वो तो कोई भी सिखा सकता है तुमको. इट इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू. लर्न समथिंग दैट इज कमिंग इन द मार्केट एवरी डे. कल क्या हो रहा है परसों क्या होगा. मतलब आई विल टेल यू मुझे भी नहीं पता कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ या कल न्यूज में क्या आने वाला है. मुझे पता है कल क्या आने वाला है पेपर. सो दिस इज हाउ वी ग्रो एवरी डे. मतलब ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम कोर्स कर रहे हो. ऐसा लगना चाहिए कि तुम किसी के साथ काम कर रहे हो. एंड वो तुमने कुछ पढ़ा है मार्केट में वो तुम अप्लाई कर रहे हो. तो आज देख लेना. आज मैंने रिपोर्ट बनाते हैं जो तुम लोग बनाते हो एंड हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक इट. तो जो लोग ने आज प्रेजेंट किया है उन लोग को मैंने ये बोला है तुमने ये प्रेजेंट तो किया बट इसका एनालिसिस किधर है. I faced you in an interview for internship and not able to answer at that time. Okay. Do we need to track record of our investment ideas and follow-ups like you? Yes, yes, you have to. You have to record. पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स का भी क्योंकि अगर तुमने बोला इंटरव्यू में कि मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट करता हूँ जैसे जैनी ने बोला कि आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 3 years. माई क्वेश्चन विल वन 12 क्वार्टर्स का डेटा दो मुझे. अगर तुमने 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या हुआ है 12 क्वार्टर्स में. इन्वेस्टमेंट करके भूल गए तो इट इज सेट टू बी बेटिंग. हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था बड़ा बड़ा नहीं बड़ा नहीं बड़ा. Okay, okay, guys. So I'll take a leave. We'll meet tomorrow, same time, 7:45, and we'll talk about penal statement more. Okay. Thank you, guys. Thank you very much. See you tomorrow, same time. Thank you, everyone. Have a good night. Good night. Good night.